Hello students, welcome to the course Mathematics 3. Today we will study about permutation group, cyclic group and subgroup. In last class I have explained about permutation group. Today we will study in detail about permutation group, what are the properties of permutation group, and introduction about cyclic group and subgroup. So product of or composition of a permutation. The product or composition of two permutations f and g of the same degree denoted by f dot g is obtained by first carrying out the operation defined by mapping f and then by mapping g. So I'm going to explain this with the help of one example, that f is a1 b1 a1 a2 an and b1 b2 bn. Similarly g is b1 b2 bn and c1 c2 cn. So if we have to find the product of fg, then we have to multiply these two, and this one is cancel out, that is b1 b2 bn of f and b1 b2 bn of g will cancel out, and it will remain with a1 a2 an and c1 c2 cn. So here one example in which I have done the permutation, product of permutation. F is this and G is this. So F, if we have to do product of F and G, then 1 2 3 4, here this is the A1 part and this one is the C1 part of G and this one is the B part. But you can see that 2 3 4 1, here it is written 2 3 4 1 and here it is written 1 2 3 4. So first we will arrange this G part. First we will arrange this G part as, because here it is written 2 3 4 1, so we will arrange this with 2 3 4 1 only. 2 first, then 3, then 4, then 1, and according to that we will put the values, like 2 here, 2 for 2 4 is there, for 2 4 is there, so we will write 2 4. Then for 3 2 is there, so I have written 3. So after for 4 1 is there, so 4 1. For 1 it's 3, so 3. Now this and this we will cancel out, and it will remain with 1 2 3 4 2 1 3. Similarly fg, if we have to find the product of gf, then 1 2 3 4, G is 1 2 3 4. In upper part it's 1 2 3 4, and in lower part it's 3 4 2 1. In question only it is given. And for f, upper part is 1 2 3 4, and at lower it is 2 3 4 1. So 3 4 2 1 and 3 1 2 3 4 we cannot cancel, because it's not totally same. First we will arrange it. We will first here write 3, then here write 4, and then here write 2 and 1. Afterwards we will cancel out these two. So according to that I have first arranged, and afterwards we have cancelled these two, and this is the product. But you will see that fg we have got this and gf we have got this, so both the values are different. So we observe that fg is not equal to gf, therefore it is not commutative. Next is permutation group. Permutation group, as we have already discussed about permutation group, but here I am explaining in a different way this permutation group. Let as denote the set of all permutation on a non-empty set S. Okay, set of all permutation on a non-empty S. Then as form a group under the composition of maps. Moreover, if S contain n elements, suppose in S there is 3 element, 1 2 3 element, then the permutation group contain n factorial elements. Permutation group, in permutation group there will be n factorial group, and the group of n factorial permutation of a set of n elements is called a symmetric group Sn of degree n. With example you will understand this more properly. This is the example in which write down all the elements of the permutation group S3. On there 3 element is there, 1 2 and 3. So on S is equal to 1 2 3 elements are there. So there then there are 3 factorial elements in S3. 3 factorial means you know the meaning of 3 factorial. 1 2 3, this is the meaning of 3 factorial. If 4 factorial is there, so you have to multiply 1 2 3 and 4. So that is the meaning of factorial. So 3 factorial ways are there to represent the permutation group of this. So these are the 6 ways through which you can represent the permutation group
Now which can be written as, here I have written first S3 is equal to 1, means this is the identity group. 1 2 3 have 1 2 3 image also. Here 1 and 2 and 2 and 1 have interchange, so I have expressed this 1 2. Here 1 3 and 3 1 interchange, 2 is constant, so I have expressed this 1 3. Here 2 and 3 is interchange, so I have expressed this 2 3, means you have to interchange the value of 2 and 3, and 1 will be constant. Here 1 2 3, all three have interchange, so I have written 1 2 3 again. And here there is a interchange between 1 has gone to 3, then 3 has gone to 2, and then 2 has gone to 1, so it will be written as 1 3 2. So these are the 6 ways through which we can represent a permutation group. What is the meaning of cyclic group? Cyclic means, if suppose you will start from here, suppose this is the point from where you have started, and afterwards you will again start, you will end here only, then this is the meaning of cyclic. So here also a permutation f on the set S is called a cyclic permutation of length L if there exists x1 x2 xi belong to S such that fx1 equal to fx2, fx2 equal to fx3, fxi minus 1 is equal to fxi, and similarly this, and fxi last element is equal to x1, means last element will meet in x1 only. Okay, so this is the meaning of how I will, with the help of example you will understand more properly. This is the example. This is the example 1 2 3 1 2 2 3 3 1. So it starts from 1, then it has gone to 2, then it has gone to 3, from 3 it has again gone to 1, means we can form a cycle, 1 then 2 then 3. Okay, and then again 3 has gone to 1, so it's just like a cycle. So this is the cycle. So 1 2 2 3 3 1 is a cyclic permutation of length 3, because here 3 elements are there which is making a cycle, so it is a cyclic permutation of length 3. Similarly 1 is going to 2, 2 is going to 3, 3 is going to 4, 4 is going to 5, and 5 is again going to 1, so this is the cyclic permutation of length 5. Now permutation like this, see here 1 and 1, 2 2 3 3, these three elements are not forming a cycle, but yes 4 is going to 5, 5 is going to 6, 6 is going to 4 again, so these three elements are forming a cycle. So this the degree of permutation is 6, but the length of the cycle is 3 only. But in this example, or in this example, the length of the cycle is 3 and 5, but in this example the length of cycle is 3. So you have to be careful that directly by saying the number of elements in a permutation group, you don't have to write the length of the cycle. You have to see that which one is forming a cycle. Here 4 5 5 6 and 6 4 is only forming a cycle, so the length of cycle is 3. A cycle does not change by changing the places of its elements in cyclic order. Means if you will change the place, then there is no problem. So like here it is 1 2 3 4, then 2 3 4 1, or 3 4 1 2. You can write anyways. It depend on you. It will not change the length of cycle. Next is, these are the some important points of cycle. The number of distinct objects permutated by a cycle is known as the length of cycle. Like in a previous example, 1 2 3 4 5 6 is there, but 1 2 3 is not forming a cycle. Here 4 is going to 5, 5 is going to 6, and 6 is again going to 4. This 3 is forming a cycle. So the number of distinct object permutated, here these 3 is not distinct objects. Here 4 is permutated to 5, 5 is permutated to 6, 6 is permutated to 4. So these are the distinct objects, that is known as the length of the cycle. Therefore I have written there length of the cycle is 3. A cyclic permutation of length L is called L cycle. Okay, like suppose if 3 length is 3, then we will tell that 3 cycle. If length is 5, then we will call it 5 cycle. A cycle of लेंथ 1 is called आइडेंटिटी परमुटेशन. वैसे साइकिल जिसका लेंथ 1 होता है उसे हम लोग आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं, और वैसे साइकिल जिसका लेंथ 2 होता है उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोजिशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकिल ऑफ लेंथ
2 is called 1, इस साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, क्योंकि ट्रांसपोजिशन वर्ड का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि साइकिल ऑफ लेंथ 2 को ही हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। Two cycles are said to be disjoint if they have no elements in common. Like see, 1 and 2, 1 2 है ये इस परमुटेशन में, और इस परमुटेशन में इस साइकिल में 3 4 है। तो ये दोनों के जो ऑब्जेक्ट्स है वो तो सिमिलर नहीं है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 4 है, तो इसको हम लोग डिसजॉइंट साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट है एक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि अगर Sn हमारा परमुटेशन ग्रुप है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल कितना होगा। अगर मान लो कि हमारे परमुटेशन में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, और हमको ये पता करना है कि हम कितने लेंथ का डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स बना सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे इस चार एलिमेंट्स की मदद से हम 2 लेंथ का भी साइकिल बना सकते हैं, 3 लेंथ का भी साइकिल बना सकते हैं, 4 लेंथ का भी साइकिल बना सकते हैं। लेकिन 2 लेंथ का साइकिल कितना नंबर उसका कितना हम लोग 2 लेंथ का साइकिल बना सकते हैं या 3 लेंथ का साइकिल बना सकते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है कि 1/r.n(n)(r) का फैक्टोरियल। सपोज हमारे पास 4 एलिमेंट है कोई भी परमुटेशन में, और हमें 3 ऑर्डर का 3 लेंथ का साइकिल बनाना है। तो सिंपली आप इस फॉर्मूला में पुट करो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 - 3। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, एक मिनट फिर से लिखते हैं, 1 × 2 × 3 × 4, ये होता है 4 का फैक्टोरियल। फिर 4 - 3 मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इवन एंड ऑड परमुटेशन किसे कहते हैं। परमुटेशन इज सेड टू बी इवन और ऑड अकॉर्डिंग एज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इवन और ऑड नंबर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, मतलब कि ट्रांसपोजिशन क्या, इसका मतलब कि उसमें 2 एलिमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम बोले कि अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 को ही हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन। इसीलिए हम पहले भी कहे कि ट्रांसपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा साइकिल जिसका लेंथ 2 होता है उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो अगर अ परमुटेशन को हम लोग इवन और ऑड तब कहेंगे जब उसे हम लोग एक्सप्रेस कर दे प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक परमुटेशन ग्रुप दिया हुआ है, 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, फिर 4 1 पे जा रहा है। तो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गया कि 1 2 पे गया, 2 4 पे गया, और 4 फिर से 1 पे चला गया। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक हमारा साइकिल 1 2 4 बना, दूसरा 3 5 पे जा रहा है, 5 3 पे जा रहा है, और फिर कंप्लीट हो गया। और 6 तो खैर साइकिल ही नहीं बना रहा है। तो हम लोग अभी पढ़े कि इवन और ऑड हम लोग नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस पे कहते हैं कि ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ तो 1 2 4 मेरा ट्रांसपोजिशन नहीं ना है, क्योंकि इसका लेंथ तो 3 है। और यहाँ तो ये ट्रांसपोजिशन है क्योंकि इसका लेंथ 2 है। ये ऐसा साइकिल है जिसका लेंथ 2 है, लेकिन इसका लेंथ 2 नहीं है, इसका लेंथ 3 है। तो इसीलिए हम लोग इसको पहले स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, 1 2 लिख दिए पहले, और उसके बाद फिर 1 4 लिख दिए। तो ये इसको स्प्लिट करने का एक तरीका है। जैसे कि अगर आपको कोई 3 और लेंथ का साइकिल है, उसको 2 लेंथ में अगर हमें चेंज करना है, तो हम लोग सिंपली उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर 1 2 4 है तो हम इसको 1 2 फिर 1 4 लिख दिए। ठीक है, इससे ये मतलब हुआ कि 1 2 पे जा रहा है, और फिर 4 भी जो है वो 1 पे जा रहा है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका। तो इस तरह से हम लोग जो साइकिल था, ये जो हमारा साइकिल मिला, उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन में पहले तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। और यहाँ पे चूँकि हमें 3 ट्रांसपोजिशंस मिला, इसीलिए एफ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, देयरफॉर एफ इज़ एन ऑड परमुटेशन। ठीक है, सिमिलरली ऑल्टरनेटिंग सेट क्या होता है, लेट एस एन बी डिनोट द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री एन, देन द सबसेट ऑफ एस एन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इवन परमुटेशन इज कॉल्ड एन। तो अगर एस एन कोई सिमेट्रिक ग्रुप है, डिग्री उसका एन है, और उसके सबसेट्स जो हैं वो इवन परमुटेशंस कंसिस्ट करते हैं, जैसे ये तो ऑड परमुटेशन कंसिस्ट कर रहा है, जो इवन परमुटेशन कंसिस्ट करते हैं उसे हम लोग ऑल्टरनेटिंग सेट कहते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब ग्रुप। अ नॉन सब ग्रुप जब में जाने से पहले हमें ग्रुप का डेफिनेशन एक बार और मेमोराइज़ कर लेना चाहिए। ग्रुप उसे कहते हैं जो
क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स को सेटिस्फाई करे उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। तो सब ग्रुप क्या होता है कि सब ग्रुप भी ग्रुप ही होता है एक तरह का। सब ग्रुप भी वो सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है जो ग्रुप का प्रॉपर्टीज़ होता है, लेकिन वो ग्रुप के अंडर का सबसेट होता है। मतलब कि अगर ग्रुप के अंदर मान लो कि ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट है और ये ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो सब ग्रुप इसका एक छोटा पार्ट होगा। जैसे कि ए बी सी, जैसे कैसे सब, कोई भी चीज़ का सब मतलब कि उसके अंडर का चीज़, मतलब यहीं से उसको जो भी अपना बनाना है इसी के अंदर से कुछ बनाना है। तो वही चीज़ हो गया सब ग्रुप। सबसेट कैसे होता है कि सबसेट होता है एक सेट है, उससे हम कोई छोटा एलिमेंट्स, मतलब 2-3 एलिमेंट्स बना के एक छोटा सेट अगर बनाए तो वो मेरा सबसेट कहलाता है। तो सिमिलरली ग्रुप है, उससे उसके अगर हम 4-5 एलिमेंट्स लेकर एक छोटा सा और ग्रुप बना दे तो वो मेरा सब ग्रुप कहलाएगा। तो वो भी एक तरह का ग्रुप ही है जो कि ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग सब ग्रुप को एच से डिनोट करते हैं और ग्रुप को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। एस्ट्रिक मतलब मल्टीप्लिकेशन के अलॉन्ग हम लोग ग्रुप को दिखा रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के अलॉन्ग। अगर लेकिन यही हमको ग्रुप या सब ग्रुप को एडिशन के अलॉन्ग दिखाना होगा तो हम लोग जी प्लस दिखाएंगे और सब ग्रुप को हम लोग एच प्लस के, क्योंकि हम बताए थे कि बाइनरी ऑपरेटर्स होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। कभी कभी हम लोग सब्ट्रैक्शन के अलॉन्ग उसको ग्रुप शो करते हैं, कभी कभी हम लोग एडिशन के अलॉन्ग शो करते हैं। जनरली हम लोग मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पैरिजन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो ना के बराबर यूज़ होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा, और सेकेंड नंबर पर एडिशन जो ऑपरेटर है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो एवरी ग्रुप जी हैज़ एटलीस्ट 2 सब ग्रुप। जैसे कि कैसे, कोई भी नंबर का 2 फैक्टर तो होता ही है। जैसे 7 है तो 7 का 2 फैक्टर 1 एंड इट सेल्फ तो होगा ही, 1 एक होता है और एक इट सेल्फ क्या होता है 7। उसी तरह से कोई भी एलिमेंट का ग्रुप भी जो होता है, सब ग्रुप भी जो होता है वो एटलीस्ट 2 तो होता ही है, वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही और जी इट सेल्फ वो खुद। तो दीज टू सब ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो जी और आइडेंटिटी और वो खुद, ये जो है इटसेल्फ और ई, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप। जैसे कि कोई नंबर में अगर 7 है और उसका सिर्फ फैक्टर 1 और 7 होता है तो हम लोग इसको प्राइम नंबर कहते हैं। सिमिलरली सब ग्रुप में हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी ग्रुप के सिर्फ 2 सब ग्रुप्स होते हैं, डेट इज़ आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ, उसे हम लोग ट्रिवियल या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। एनी नंबर एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ द ग्रुप जी। उस तरह से यहाँ पे सब ग्रुप के एग्जांपल है, देखिए जैसे कि ये ग्रुप है, ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 -1 ई आई और -i, और इससे हम एक सब ग्रुप बनाए जिसमें मेरा कितना एलिमेंट है 1 और -1 है, और इसको हम किसके अलॉन्ग बनाए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ किए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर अगर हम लोग यूज़ करेंगे तभी ये प्रूव हो पाएगा कि ग्रुप है। तो मल्टीप्लिकेशन को या तो आप एस्ट्रिक से दिखाओ या तो डॉट से दिखाओ, जनरली हम लोग डॉट से दिखाते हैं। Z प्लस इज़ अ सब ग्रुप ऑफ Q प्लस। Q जो है वो रैशनल नंबर का सेट है और Z जो है वो इंटीजर्स है। तो रैशनल नंबर के अंदर तो इंटीजर्स भी आ जाता है, तो इस तरह से रैशनल नंबर का सब ग्रुप है इंटीजर्स। सिमिलरली Q प्लस जो है वो रियल नंबर का सब ग्रुप है। रियल नंबर तो एक तरह से पूरा नंबर, जितने भी तरह के नंबर होते हैं वो सारे रियल नंबर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। जनरली रियल नंबर मतलब कि कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वायर करो और पॉजिटिव आ जाए तो वो रियल नंबर होता है। तो चाहे वो नेगेटिव हो या √2 √3 ये सब कोई भी नंबर हो, वो सारे रियल नंबर के कैटेगरी में आ गए। तो रियल नंबर का सब ग्रुप कौन है, रैशनल नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे और भी क्राइटेरिया है इम्पॉर्टेंट कि सब ग्रुप होने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है कि ए बी दोनों को बिलोंग करना चाहिए। एच, अगर ए और बी दोनों एच में बिलोंग कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी एच में ही बिलोंग करेगा। सिमिलरली अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो ए इन्वर्स भी एच में ही बिलोंग करेगा। अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि अगर अ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एच। मतलब अगर ए दोनों का प्रोडक्ट अगर एच में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए भी एच में बिलोंग कर रहा होगा और बी भी एच में बिलोंग कर रहा होगा। नेक्स्ट है, ये तो मल्टीप्लिकेशन के अलॉन्ग था। एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें देखना है कि
क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए और बी एच में बिलोंग कर रहा है तो ए प्लस बी भी एच में बिलोंग करेगा, अगर ए एच में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी एच में बिलोंग करेगा। ये दोनों को हम लोग कॉम्बाइंड फॉर्म में ए माइनस बी बिलोंग टू एच भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से एक और इसका थर्ड प्रॉपर्टी होता है कि अगर एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ ग्रुप जी, तो देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग टू एच इम्प्लाइज डैट। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो इससे हमको ये पता चले कि ए और बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। तो ये एडिशन के केस में हम लोग को ये भी केस देखना होता है, जहाँ पे बी इन्वर्स जो होता है वो बी का इन्वर्स होता है। तो एक बार इसको आप लोग अच्छे से फिर से देखोगे, यहाँ पे जो भी डाउट होगा उसको एक बार आप लोग पूछोगे। और ग्रुप्स सबसे पहला जो लोगों का आज फर्स्ट क्लास है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट क्लास है, तो वो लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, तो काइंडली आप लोग एक बार प्रीवियस लेक्चर भी देख लो, जो हम लोग प्रीवियस में सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़े थे, ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, ग्रुप पढ़ने से पहले ग्रुपॉइड, मोनोइड और ये सब पढ़े थे, तो वो सब एक बार देख लो। और सेमी ग्रुप्स ये सब भी पढ़े थे, तो वो सब एक बार देख लो। और अगर वो सब प्रीवियस वीडियोस में भी अगर कुछ भी डाउट होता है तो एक डिस्कशन फोरम बनाया गया है, उस पर आप लोग देख सकते हो। थैंक यू।